Assalamu alaikum dear students of class 7. Welcome to your lecture of English. How are you everyone? I hope that everyone is doing well at home. This is your teacher Aisha Salim and it's our lecture number 19 and today is Monday 31st of May 2021. Students, in the previous video we had started our new grammar topic and that is direct and indirect narration. And the previous video was your introduction video with direct and indirect narration. Today we are going to do with some rules, okay? And before doing that, let us revise the previous concepts. In the previous video I had told you about the definition of direct and indirect narration, and I had told you that we are going to do direct and indirect narration assertives. And assertives are the sentences which are declarative, which are simple statements. Okay. Then I had told you that there are two parts of a sentence in direct form of. Okay. In direct form, there are two parts of a sentence, and I had also shown you this sentence structure. In the direct speech, the sentence structure is something like this. You can see that here, for example, here is something is written and then a comma, then we'll put inverted commas, and then there will be your sentence, then a full stop, and the inverted commas will be closed. So I had told you that there are two parts of a sentence. You can see two parts here. The first part is called one part of the sentence is called reported speech, and the other one is called reporting speech. Now, what is reporting and what is reported? I had told you that the part which is outside of the inverted commas, like this part is called reporting speech. Okay, and the part of a sentence which is inside of the inverted commas is called reported speech. Okay. Then now here are some minor points that you all have to remember. Okay. In the previous video I had shown you the sentence structure, this sentence structure, and you can see a comma and inverted commas here. While changing a direct sentence, this type of a sentence, into an indirect sentence, the commas will be changed into that, these commas. Okay, ये जो commas है ना, इसकी जगह पे हम that लिख देंगे. Understood? जब हम इस sentence structure को, इस direct sentence structure को indirect sentence structure में change करेंगे तो इन commas को हम that में change कर देंगे. Understood? And उस indirect sentence structure में ये commas ख़त्म हो जाएंगे. Then if you'll see said to in reporting speech in the outside of the inverted commas, so it will be changed into told. ओके ये देखिए सेड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड दैट इज़ वाई जब हम सेड टू देखेंगे तो हम उसको टोल्ड लिखेंगे, टेल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, सेज टू होगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, और से टू होगा तो वो टेल में चेंज हो जाएगा. ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड, द मेन पार्ट ऑफ द नरेशन, देर आर 3 चेंजेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. 3 मेजर चेंजेस. ओके, और ये ही 3 मेजर चेंजेस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने हैं. द फर्स्ट वन इज़ चेंज ऑफ प्रोनाउंस, सेकेंड वन इज़ चेंज ऑफ टेंस, एंड द थर्ड वन इज़ चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस. Okay students, if you remember in the previous video I had told you about these 3 changes, and I had told you about pronouns also. मैंने आप लोगों से pronoun की definition को भी discuss किया था. that what is a pronoun? A pronoun is a word which is used instead of a noun. For example, he, she, it, they. Understood? So in this video today we are going to do the change of pronoun. इस वीडियो में हम चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, और मैं बहुत आराम से आप लोगों को नरेशन समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए. बिकॉज द मेन रीज़न इज़ कि जब हम लोग फ़िज़िकल क्लासेस में नरेशन करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, तो बोर्ड पे टीचर समझाती है और वो पूरे एक लेक्चर में अगर सारे रूल्स भी समझा दें तो बच्चों को समझ आ जाती है. बट एज़ यू ऑल नो के कोविड की वजह से ये ऑनलाइन वीडियोस वाला सिस्टम है, सो दैट इज़ वाई
आप लोगों की अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ इस चीज़ को समझना है। अंडरस्टूड? सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डू चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम चेंज ऑफ प्रोनाउन सीख लेते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में डेफिनेशन बताई कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ओके। और इसको हम पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये सारे, ठीक है। नाउ देर आर 3 पर्सन्स, और ये मैंने आपको छोटा सा एक टेबल जो है ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, और उसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। और वो ये हैं, फर्स्ट पर्सन है हमारे आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन है यू एंड थर्ड पर्सन है ही, शी एंड इट, ओके। सो मैंने यही आप लोगों को जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेकर यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। एंड इसमें मैंने शो किए हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस को, ठीक है। सो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, इसको हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इसको हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। और ये इनकी पोजेसिव जो है पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप है, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ओके। एंड जो लास्ट वाली है सेल्फ वाली, इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ये आपकी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और ये चार्ट भी मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आई का जो है वो ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है। क्योंकि अगर ये केसेस जो हैं अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास लिखे हुए आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई की जगह माई लिखा आ जाता है, मी या फिर माई सेल्फ लिखा आ जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन का जो है हिस्सा है, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल यहाँ पर जो है लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो आई इज़ अ सब्जेक्टिव case of personal pronoun, first person pronoun, and it's my is objective case and me is possessive case and myself is reflexive case, ठीक है। सो इस टेबल को इसी तरीके से we का जो है ऑब्जेक्टिव केस our है, देन इसका possessive us है, और फिर इसका रिफ्लेक्सिव केस है ourselves है। इसी तरह से बाकी हैं। और ये मैं आपको अगेन बता दूं कि हमारा आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना है कि हमारा फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन हमारे 2 हैं और जो सेकेंड पर्सन है वो सिर्फ एक है जो कि है यू, ठीक है। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है और वो सिर्फ एक ही है। एंड थर्ड पर्सन है हमारे 3, ही, शी एंड दे। अब इस चीज़ को आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अब हम देखते हैं कि एक जो है हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं। सो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला टू चेंज प्रोनाउंस इन नरेशन। नरेशन में प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके। एंड यू कैन सी अ फार्मूला हेयर, SON फार्मूला, ठीक है। उसके नीचे मैंने 1 2 3 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब आपने इस फार्मूला को अच्छे तरीके से देखना है। SON फार्मूला, S मीन सब्जेक्ट, O मीन ऑब्जेक्ट एंड N मीन्स नो चेंज। इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिए। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड N का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उस S के नीचे लिखा है 1, O के नीचे लिखा है 2 और N के नीचे लिखा है 3, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन एंड 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, ओके। अब ज़रा रिमाइंड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि सब्जेक्ट बोलते हैं द डूअर ऑफ द सेंटेंस, और ये मैंने आप लोगों को जो हमारे एक्टिव पैसिव्स का टॉपिक था उसमें भी बताया था कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, द डूअर ऑफ द सेंटेंस। जो भी कोई शख्स कोई काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो
अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया एस हमारा सब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज, और ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड और थर्ड पर्सन। अब ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, अगर हमारे किसी डायरेक्ट सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ आ जाता है तो हमने जो हमारे कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। आपको मेरी बात समझ आई है? ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन मेरी बात को दोबारा से सुनिए। मैंने ये बोला कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट सेंटेंस में कॉमास के अंदर वाले पोर्शन में आपको अगर फर्स्ट पर्सन मिलता है, यानी कि आई या वी मिलता है, या फिर उसका कोई भी पोजेसिव रिफ्लेक्सिव केस मिलता है, या कुछ भी मिलता है उसमें से किसी उसके कोई भी केस मिलता है फर्स्ट पर्सन का, तो आपने उसको कॉमास के बाहर जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोनाउन को आपने चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों को डायरेक्ट सेंटेंस में सेकंड पर्सन यानी कि यू, योरसेल्फ, इस तरह का कोई वर्ड मिले तो आप लोगों ने जो कॉमास के बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज करना है। ठीक है, और अगर आप लोगों को अब कॉमास के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन मिलेगा सो इट देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, सो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। इफ़ यू विल फाइंड फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। Understood? And if there will be a second person in the reported speech, it will be changed according to the object of reporting speech. Okay, and if there will be third person in the reported speech, so there will be no change. Okay, so now here are some examples. मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के लिए एक एग्जाम्पल आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है। He said to me आई माई सेल्फ। अब यहाँ पे आप कुछ भी सपोज कर लो कि आपका कोई भी सेंटेंस है, मैंने सिर्फ प्रोनाउंस का, क्योंकि आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रोनाउंस लिखे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हमने ये हमारा एक डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो ही सेड टू मी आई माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सेड टू को मैंने आप लोगों को बोला था टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सो ही टोल्ड मी, अंडरस्टूड। एंड नाउ मैंने आप लोगों को बोला था कि जो कॉमाज है वो दैट में चेंज हो जाएंगे, सो ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो आई लिखा हुआ है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या कहा था कि बाहर जो कॉमाज के बाहर वाला पोर्शन है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे हमारे कॉमाज के बाहर क्या सब्जेक्ट है हमारा, ही। ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया, ही, हिज, हिमसेल्फ, सॉरी। अब आपने ये देख लें कि जो भी आपका यहाँ पे प्रोनाउंस होंगे उसको आपने जो है अपने जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आप देखें सेकंड पर्सन की एग्जांपल, मैंने यहाँ लिखा ही सेड टू मी यू योरसेल्फ। यू कौन सा पर्सन है पे, यस सेकंड पर्सन है, एंड वही चेंजेस ही टोल्ड मी, सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज कर लिया, कॉमास को दैट में चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि इस मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई माई सेल्फ। ठीक है, अब आप देखें थर्ड एग्जाम्पल थर्ड पर्सन की है। ही सेड टू मी शी हर सेल्फ। शी हमारा थर्ड पर्सन है ना, ही शी दे ये हमारे थर्ड पर्सन से। ठीक है, सो इसको हम लोगों ने क्या करना है, देयर विल बी नो चेंज फॉर थर्ड पर्सन। ओके, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट शी हर सेल्फ। अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, नाउ हियर इज़ अ पॉइंट, इफ़ देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच विल यूज़ फर्स्ट पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप ये देखो कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, मी लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर सेंटेंसेस यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता, तो हम क्या करेंगे उस वक़्त जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना है तो हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? इस बात को आपने याद रखना है। Okay, so that's all for now. Here's your diary. You all have to revise the concept discussed in the lecture and you all have to write all the important points in your notebook, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब यहाँ पे हमने आज कौन कौन से important points डिस्कस किए, मैं आप लोगों को स्लाइड्स दोबारा से दिखा के तो आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने
ये तो रिवीजन की थी और ये पॉइंट्स आप लोग लिख चुके हो, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वाले, और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अपनी कॉपी पे बना चुके हो। आपने ये जो माइनर पॉइंट्स हैं दैट वाला और ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे सेट टू रोल, ये चेंजेस हैं, ये सब कुछ आपने अपने जो है कॉपी पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ये तीनों चेंजेस लिखने हैं, 3 चेंजेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और जिसमें हम चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस और टाइम प्लेस, ये तीनों आप लिखोगे, ठीक है। देन आप लोगों ने क्या करना है, एक मार्कर से हेडिंग देनी है चेंज ऑफ प्रोनाउन की, और फिर क्या करना है, आप लोगों ने पहले भी एक प्रोनाउंस का टेबल बनाया है, आई थिंक वो वाला टेबल भी अगर आप बना लोगे तो भी ठीक है, अगर आप ये वाला टेबल बनाना चाहो तो भी ठीक है, इट्स अप टू यू। इस तरह से आप एक टेबल बनाओगे प्रोनाउंस का। देन आप लोगों ने ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद बेटा आपने SON और उसके नीचे 1 2 3 लिखोगे आप लोग, और S के साथ आप एरो लगा दोगे और साइड पे लिख दोगे सब्जेक्ट, O के साथ एरो लगा दोगे और लिखोगे ऑब्जेक्ट, N के साथ आप एरो लगा दोगे और लिखोगे नो चेंज। इसी तरह ये तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये आप लोगों को पता लग जाएगा। देन आप लोगों ने 3 इसके सब पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे that if there will be first person in the reported speech, so it will be changed according to the subject of reporting speech, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका फिर सब पॉइंट क्या होगा कि if there will be second person in the reported speech, so it will be changed according to the object of reporting speech, ठीक है। फिर आपका थर्ड सब पॉइंट होगा इफ़ देयर विल बी थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, सो देयर विल बी नो चेंज। ये आपने तीनों पॉइंट्स पूरे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने चाहो तो आप लोग इस तरह से तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की एग्जांपल्स लिख लो अपने पास, एंड देन के पॉइंट लिख लो, ठीक है। सो आप लोगों ने इन शॉर्ट ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी पर लिखने हैं और सारे जो है लेक्चर को गौर से सुनना है, और इस सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने घर में रिवीजन करनी है। अंडरस्टूड? इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू चेंज ऑफ टेंस and change of time and place, okay? So we'll meet in the next video. Till then everyone take care. Allah Hafiz.